Have you prepared or मैम not? हाफ हो गया है। हो गया? कौन बोला हाँ हो गया? मैम हाफ हो यस। गया है। हाँ, half हो गया. Have you written the question? What was the provisions of the Napoleonic Code 1804? This question is very important. Briefly trace, write it. Briefly trace the process of the unification of Britain. Briefly trace the unification, briefly trace the process of the unification of Britain. All right. Then again you will write a question related to that. Same answer will be there, but the question will be changed. Describe in brief, describe in brief the, describe in brief the process by which, describe in brief the process by which the British nation came into existence. British nation came into existence. You know the answer of this question. This answer is given in the first chapter, page number, where it is written that is what is the process of the unification of Great Britain. From there you have to write this answer, all right? Now this answer is given in page number, open that, that is जहाँ पे लिखा है visualizing the nation, उसके पहले the strange case of Britain, page number 21. Got that portion? The strange case of Britain. All right. This is from page number 21. From here you have to write the answer and divide the points. For example, you will write the economic prosperity. First main heading will be, the main title will be given that the economic prosperity. That is, the Great Britain was very prosper. Prosper means well developed. How it was well developed? Because she was industrialized. She had got economic prosperity and her industry was highly developed. So she was economically very well. Second, you will mention about the process related to the role of parliament, because here the revolution had already came and Great Britain had established a democratic form of government. So second point you will write about the role of parliament in making the British country a well-developed or unified. For example, you will mention it from the paragraph, page number 22 paragraph में देखो वहाँ पे लिखा हुआ है. The English Parliament, the British Parliament यहाँ पे लिखा है, which had seized power of the monarchy in 1688. देखो जहाँ 1688 date लिखा है वहीं से mark करो. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, मिला है ये line? जिज्ञासा? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. At the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came into forced. Forced means came to be established. यहाँ तक लिखोगे रोल ऑफ पार्लियामेंट में, है ना. थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डालोगे द एक्ट ऑफ यूनियन, रोमन नंबर 3 लिखो और मेन टाइटल डालो द एक्ट ऑफ यूनियन. अब इसमें देखो क्या मेंशन करोगे, जहां फोर्स्ड एंड किए वहीं से थर्ड पॉइंट शुरू करो. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. इफ यू रिमेंबर द डेट, I've already told you, if you remember the date, then only you write the date, otherwise you leave the date. All right. Now, next देखो यहाँ से फिर मार्क करो. The Act of Union between England and Scotland
resulted in the formation of United Kingdom. यहाँ तक मार्क करो, United Kingdom of Great Britain. मिला ये पॉइंट, यहाँ तक मार्क करो. एक्ट ऑफ यूनियन, तो अब एक्ट ऑफ यूनियन में वो किस 3 कंट्री को मिला दिया ग्रेट ब्रिटेन में? तो यहाँ देखो ऊपर में लिखा है वेल्स, स्कॉट, आयरिश, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश. आयरिश मतलब आयरलैंड को. ये 3 छोटे छोटे आइलैंड्स थे जिसको पार्लियामेंट जब वहां पे बना तो ये तीनों को मिला दिया गया और पूरा एक कंट्री ब्रिटेन बन गया, है ना. यूनाइटेड किंगडम उसको कहा गया. ब्रिटेन को नया क्या कहा? यूके. यूके हम लोग बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड किंगडम. तो यूनाइटेड किंगडम अगर तुमसे कोई पूछे तो यूनाइटेड किंगडम मीन्स अंडर एक्ट ऑफ यूनियन. एक यूनियन पार्लियामेंट पास किया वहां का, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसने 3 छोटे छोटे टापू को, आइलैंड को मिला दिया और उसके बाद उसका नाम रख दिया यूनाइटेड किंगडम. ऑलराइट, तो कौन से 3 एरियाज को मिलाया? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड. ऑलराइट, you will remember these 3 because it may come in 1 marks question. Now you have marked the act of union. एक और सबसे पहले बताए थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी अंडरलाइन कर लो कि इसके अंडर क्या लिखोगे, नहीं तो फिर खोजते रहोगे कि मैम क्या लिखे क्या लिखे. यहाँ से मार्क करो, फर्स्ट पेज नंबर 21 से देखो. In Britain, the formation of nation state was not the result of certain upheaval. Upheaval word को underline करके हटा दो. Sudden revolution, यहाँ से तक मार्क करो. उसके बाद अब यहाँ से मेंशन करो. तुम्हारे बुक में पता नहीं उतना लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे पेंसिल से लिख लो ऊपर में. Write it with pencil. It will be easy for you to remember. The Industrial Revolution helped in the Industrial Revolution helped in the, नहीं लिखा हुआ बुक में, इससे लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं. The Industrial Revolution have helped the establishment of, the Industrial Revolution had helped the establishment of economic prosperity of English nation. Economic prosperity of English nation. Full stop though. With the help of trade, है ना, with the help of trade and wealth, with the help of trade and wealth. Are you writing? या चुपचाप बैठा हुआ है? लिख रहे हो सर? लिख रहे हैं मैम. हाँ. यस मैम. यस मैम. अब कितना बार रिवीजन करेंगे? अब एक बार बोर्ड का दोगे तब करेंगे. प्री बोर्ड के समय भी पता नहीं देखो टाइम मिलेगा कि नहीं. इसलिए जितना क्वेश्चंस दे रहे हैं सबका नोट्स बना. प्री बोर्ड पास करना बहुत जरूरी है ना. इसलिए और उसमें मार्क्स लाना भी बहुत जरूरी है. अच्छे अच्छे कॉलेजेस में या अच्छे अच्छे स्कूल्स में अब रिजल्ट सीबीएसई का जल्दी नहीं निकलता है फाइनल, तो प्री बोर्ड का भी जो मार्क्स होते हैं जिसको प्रोविजनल मार्क्स कहा जाता है, बीएसईबी ये सब जैसा कॉलेज स्कूल जो है वो पहले ही एडमिशन लेता है. तो एडमिशन वो कहाँ से लेता है? तो यही प्री बोर्ड के मार्क्स से ले लेता है. इसलिए प्री बोर्ड का मार्क्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बोर्ड के मार्क्स के बराबर. समझ रहे हो ना सब? मोहित, जिज्ञासा, यस मैम. यस हर्षित, Yes, your ma'am. Yes, ma'am. result will be at top level. खास करके जहाँ हम पढ़ा रहे बउआ अच्छा होना चाहिए, तो फिर कटी से एकदम बातें नहीं करेंगे तुम लोग से ना. बात करना है ना, बाद में दोस्ती रखना है ना कि नहीं रखना है? यस मैम. Yes मैम. दोस्ती तो रखना है हमसे, नहीं तो तुम लोग जाओगे कहाँ और हम जाएंगे कहाँ. इसीलिए
जो हम बोल रहे हैं उसे मेरा बात मान लेना, समझ रहे हो? हम बहुत पॉपुलर है इसी बात के लिए कि प्रीत मैम बात बात तक अपने स्टूडेंट को बहुत याद रखती, इसलिए अपना याद रखना, क्योंकि फिर स्कूल लाइफ दोबारा नहीं आता है। और तुम लोग को ना यही स्कूल लाइफ देखना बहुत मजा आएगा। तुम लोग का तो बैड लक है कि 10th का स्कूल ही बंद हो गया, नहीं तो कितना एंजॉय करते अभी तुम लोग स्कूल में, नहीं? कितना मजा आता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तब 2 साल में 2 बार, दूसरा साल में तो कम ही पढ़ाते, ज्यादा तो हम बात ही करते तुम लोग से। बंद हो गया स्कूल। चलो अब लिखो यहाँ से, with the help of trade and wealth, ये लाइन लिखे हो ना, write it. With the help of trade and wealth, it succeeded in extending its influence over other nations of the island. It succeeded in extending its influence over other nations of the island. हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अब देखो लिखा, हम क्वेश्चन दिए हैं, प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। फर्स्ट पॉइंट यू हैव written economic prosperity. Second, you have marked in your book role of parliament. Third, you have marked act of union. Fourth, you will mark incorporation of INCORPORATION, incorporation of Ireland, IRELAND, incorporation of Ireland into the United Kingdom. यहाँ तक ये मेन पॉइंट लिखोगे। अब इसका आंसर लिखो, आयरलैंड सेकेंड पैराग्राफ मार्क करो। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली, सेकेंड पैराग्राफ के 2, 3, 4, 5, 6th लाइन में मार्क करो। Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. मिला ये लाइन? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mark here. Till mark here. That Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. है ना? अब इसमें मार्क करो फिर, in 1801 under the Act of Union, यहाँ से मार्क करो, 1801 में उसको मिला दिया गया, through the propagation of English culture, यहाँ से फिर मार्क करो, 1801 जहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे that incorporated United Kingdom in 1801, यहाँ तक मार्क किए। अब फिर यहीं से लिखो 1801, before this corporation, पेंसिल से वहां पे ऐड कर लो, before this corporation the country was deeply divided into, ऊपर में इसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसमें देखो, it was a country, यहाँ पे पेंसिल से एक एरो बनाओ और उसमें लिखो before 1801, अब इसको लाइन से ऐड करो, it was a country deeply divided between Catholics and Protestants. मिला ये लाइन? The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country. Okay ना? A largely Catholic country. यहाँ तक पूरा ऐड करो। तो पहले 6th लाइन में जो पॉइंट है उसको लिखोगे और उसके बाद फिर ये फर्स्ट पॉइंट को पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को उसे अटैच कर दोगे, तो तुम्हारा 4th पॉइंट तैयार हो जाएगा।
5th पॉइंट मेंशन करो। 5 द नेशन, वहां पे लिखो द नेशन। अ न्यू ब्रिटिश, जहां पे तुम 1801 मार्क किए हो, वहीं से देखो 6th लाइन 7th लाइन में देखो लास्ट पैराग्राफ। अ न्यू ब्रिटिश नेशन को अंडरलाइन कर दो। A new British nation was forged लिखो या formed लिखो या established लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. Second mark करो। The symbols of New Britain, the British flag को क्या कहा गया? Union Jack. The national anthem, God Save Our Noble King. The English language were actively promoted, and the older nations survived only and as subordinate partners of this union. है ना? ये अपने आप को पूरा तगड़ा बना लिया, स्ट्रॉन्ग, और बाकी जितने छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला लिया और अपने आप को एक नेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी था ही, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही चुका था, पार्लियामेंट भी यहाँ पे बन ही चुका था। अब इसको करना क्या था कि एक यूनियन पास किया, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ यूनियन, और सारे स्मॉल आइलैंड्स जो स्कैटर्ड थे इधर उधर सबको मिलाकर अपना एक नेशन डिक्लेयर कर। तो नेशन बनाने में तो हो गया, एक कॉमन टेरिटरी हो गया, एक कॉमन नेशनल एंथम, फ्लैग हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब मिला दिया गया, कॉमन बाउंड्रीज हो गई, तो उसको कहा गया इंग्लैंड बिकेम अ नेशन। सेम वैसे ही पढ़े हो जैसे इटली और जर्मनी का है। Have you written that how Italy unified and how Germany unified? Have you written your answer of that question? Have I given you as an important question these two? अब 3 तुम यहाँ पे पढ़ चुके। फर्स्ट पढ़े हो the German unification, process of the German unification. सेकेंड पढ़े हो the process of Italian unification, और थर्ड अभी जो मार्क किए the process of British unification। देखो इस चैप्टर से जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा वो हम तुमको लिखवा दिए हैं, है ना। अब एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे आएगा एक्ट ऑफ यूनियन क्या है, किस 3 आइलैंड को मिलाया गया वो आएगा, है ना। यूनाइटेड किंगडम में कैसे आयरलैंड रिवोल्ट किया था, आयरलैंड को कैसे वो अपने आप में मिलाया, और इंग्लैंड अगर नेशन बना तो वो क्या क्या एस्टैब्लिश किया, तो अपने फ्लैग, अपने लैंग्वेज, नेशनल एंथम सबको मेंशन करो। ऑल द क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, एंड ट्राई टू राइट वन वर्ड क्वेश्चंस। नाउ अगर अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखो explain the changes brought about in Europe. Explain the changes brought about in Europe by the Treaty of Vienna 1815. Treaty of Vienna कहाँ पे हुआ था? जो बोलेगा उसको 1 मार्क्स। Where was Treaty of Vienna concluded? France. अभी देखो हाफ ईयरली में तुम लोग मार्क किए हो, Treaty of Vienna was signed in France. मोहित देखो नहीं बता पा रहे हो, जिज्ञासा मैम फ्रांस। हाँ, हम जर्मनी। कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़े हो ना? यस मैम। ग्रीस। यस मैम। तब कैसे भूल गए? कॉन्स्टेंटिनोपल में ना ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ है। यस मैम। तब भूल गए इसका मतलब नहीं पढ़ाई हो रहा है। देखो स्कूल नहीं आना है, घर में बैठना है, इसलिए एकदम। हाँ मैम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल तो 1832 में साइन हुआ ना?
Congress of Vienna was signed where? Treaty of Vienna was signed where? अभी हम क्वेश्चन दिए थे ना. Yes, ma'am. Treaty of Vienna signed in 1815. Changes brought about in Europe during the Napoleonic War, है ना. लेकिन साइन हुआ कहाँ था? Greece. Yes, ग्रीस में हुआ था ना साइन. उसी को न पढ़ते हो कॉन्स्टेंटिनोपल. देखो तो बुक में कि नहीं पढ़ते हो उसको. भूल गए? Yes, ma'am. तब No. अब चलो यहाँ पे हम एक्सप्लेन दिए थे. एक्सप्लेन एनी फोर और एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ वियना. अब इसका आंसर मार्क करो. पहले खोलो पेज नंबर where Treaty of Vienna is given. Where the Treaty of Vienna is given. 11. Open that page. Page number? 11. Huh? 11. बोलो पेज नंबर 11. 11. लास्ट में देखो लिखा है ना. अंडर द चांसलर ड्यूक मैटरनिक द ट्रीटी ऑफ वियना was settled and it was concluded between four countries, Britain, Russia, Prussia and Austria. लिखा हुआ है. आप देखो फर्स्ट पॉइंट मार्क करो. The changes brought about by the Treaty of Vienna of 1815 concluded. First one, the Bourbon dynasty was restored to power. बर्बन डायनेस्टी है. जैसे ही नेपोलियन का डेथ हुआ वहां पे कौन सा राज्य फिर से वापस आ गया? जिसको Monarchy. यस मोनार्की वापस आ गई. कौन सा डायनेस्टी वापस आ गया? Bourbon. Bourbon Dynasty. तो पेज नंबर Bourbon 11 में लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में. दैट फर्स्ट पॉइंट, the Bourbon dynasty which had been deposed during French Revolution. Deposed मतलब जो हट गया था वो अब वापस आ गया. After which ruler? After Napoleon. मार्क करो. The Bourbon dynasty which had been deposed during French Revolution was restored to power. वापस आ गया. Second मार्क करो. France lost the territories it had annexed under Napoleon. Napoleon जहां जहां war raise किया था, because Napoleon was a conqueror. You have read that he was a conqueror, है ना. He was not a liberator, but he was a conqueror. So what he did, he conquered number of territories. जैसे नेपोलियनिक कोड वो पास किया. नेपोलियनिक कोड से वो फ्रांस पे बहुत नए नए चीज को इंट्रोड्यूस किया. लेकिन जो वो गलत काम किया वो क्या था? He became a conqueror of Europe. So when he conquered whatever territories he had conquered, जैसे जर्मनी से ऑस्ट्रिया प्रूशिया लिया था. इसलिए ना जर्मनी जब अपना यूनिफिकेशन शुरू किया, जर्मनी नेशन अपने आप को बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले बिस्मार्क फ्रांस पे अटैक किया और फ्रांस से वही दो एरिया लिया जो नेपोलियन उससे लिए हुए था, क्योंकि वहां पे जर्मन स्पोकन पीपल थे. और जब फ्रांस को डिफीट करके वो दो एरिया तो लिया ही लिया, बाकी और जब फ्रांस हैज लॉस्ट द वॉर, बिस्मार्क से वो हारा था फ्रांस, इसलिए वो और भी बहुत सारा वॉर कंपनसेशन, अल्सेस लोरेन कोल माइन एरियाज, ये सब भी वो फ्रांस से ले लिया था फॉर 15 इयर्स लीज पे, है ना. तो ये सब जैसे पढ़े ना कि इंडिया में स्टेट कैसे बना है, तो वी विल से इंडिया में स्टेट लैंग्वेज से डिवाइड हुआ है. जहाँ पे जो लैंग्वेज पॉपुलर है वहां पे उतना उसको उतना ही दूर में बांध के रखा गया. तो स्टेट कैसे फॉर्म हुआ? तो लिंग्विस्टिक स्टाइल से फॉर्म, लैंग्वेज पॉलिसीज. तो सेम यहाँ पे यूरोप को हम पहले बोले इट इज अ कॉन्टिनेंट, but it was not divided into countries like we have France, England, Germany, Italy. जितना छोटा छोटा कंट्रीज है अभी यूरोप में, वो पहले कुछ भी नहीं था.
तो लैंग्वेज वाइज ये लोग नेशन बनाना शुरू किए. So what was the process of making a nation? You will at once write language. जहां से जो लैंग्वेज स्प्रेड था वहां पे वो एक नेशन बन रहा. इसलिए जब जर्मनी यूनिफाई हुआ तो नेपोलियन जो जो एरिया जर्मनी से लिया था, जर्मनी अटैक किया फ्रांस पे and took all those areas from France and completed her boundary. All right. So here you will mark the second point that France lost the territories it had annexed under Napoleon. Who has taken those colonies now? Bismarck, under the unification of Germany. Third marker, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. है ना, क्योंकि फ्रांस बहुत रिएक्शनरी था और फ्रांस बहुत इन्फ्लुएंशियल भी था. क्योंकि एक सेंटेंस पढ़े, प्रोवर्ब पढ़े हो, इफ फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कॉजेस कॉट कोल्ड. पढ़े हो ना कि वहां पे थोड़ा सा भी कुछ चेंज होता था तो पूरे यूरोप में इफेक्ट हो जाता. इतना फ्रांस इन्फ्लुएंशियल था. इसलिए फ्रांस का जब नेपोलियन का डेथ हो गया, फिर से बर्बन डायनेस्टी, नोबल्स, क्लर्जीज जब फिर से वापस आए तो ये लोग क्या किया कि फ्रांस को ना चारों ओर से घेर के रखे हुए कि फ्रांस किसी भी दूसरे कंट्री पे अटैक ना करे. है ना, कि जहां अटैक करेगा ना कि पूरा कंट्री में फिर एक दूसरे पर अटैक करके पावर सीज करने का प्रोग्राम शुरू हो जाता. तो ये लोग क्या किया कि पूरे फ्रांस को चारों ओर से बांधे हुए था. तो तुम लोग थर्ड पॉइंट मेंशन करो, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप, चेन, एकदम चेन बना दिया स्टेट से, बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. वो किसी भी कंट्री पे अटैक कर ही नहीं सकता. थर्ड, फोर्थ मार्क करो, बेल्जियम, यहाँ से मार्क करो, बेल्जियम was set up in the north and Geneva was added to the Piedmont in the south. यहाँ तक मार्क किया. फिफ्थ मार्क करो, Prussia was given important new territories on its western frontiers. देखो कैसे बांट रहा है. ये सारा एरिया नेपोलियन जीते हुए सब फ्रांस से लेकर सबको बांट रहा है कि अपना अपना बाउंड्री सब कंप्लीट करे. फ्रांस ऐसे नेपोलियन के अंदर इलीगली अपने बाउंड्रीज को फैलाए हुए था. तो जो एरिया जिस कंट्री का था लैंग्वेज वाइज वो सबको वापस जा रहा है. Prussia was given important new territories on its western frontier. मार्क करो यहाँ से. While Austria was given control of northern Italy. यहाँ तक next marker. Sixth point mark करो. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. यहाँ तक मार्क किया. सेवेंथ पॉइंट मार्क करो. 10 monarchies, यहाँ से मार्क करो. The main intention to restore का जगह पे द जहाँ लिखा है वहाँ पे लिखो 10 monarchies that had been overthrown by Napoleon created a new conservative order in Europe. फिर से वापस वही मोनार्की रूल आ गया. और लास्ट अब मार्क करो, जर्मनी. नेक्स्ट पेज में देखो, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, ये कहाँ पे है देखो, उनको बता रहे हैं. द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, यहाँ से देखो ऊपर में आओ, ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ से मार्क करो, एक लाइन छोड़े हुए हो देखो, नीचे से 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन देखो, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के फिफ्थ लाइन में नीचे से काउंट कर 1 2 3 4 5. गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. देखो लिखा जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. मार्क किया. The German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. यहाँ तक मार्क करो. Alright, ये पूरा आंसर तुम्हारा हम मार्क कराए हैं. And it is very important question, Treaty of Vienna. इसलिए इसको डबल टिक लगाओ और इसका आंसर याद हो जाना चाहिए, है ना.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ, ये 2019 का क्वेश्चन मार्क है. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन. है ना, कैसा था इटली यूनिफिकेशन होने के पहले, कैसा था इटली? Mark here, write it. Explain the political situation of Italy before its unification. और करो, चॉइस में दूसरा क्वेश्चन लिखो, आंसर सेम होगा. Give a brief account of political. Give a brief account of political fragmentation. Fragmentation is fragments. Give a brief account of fragments of Italy, which had led to the change, Now see the book and mark the answer. Page number 20. Open, come to page number 20, and from there you mark it. Italy had a long history of, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, मार्कर. इटली टू, TOO2 है, उसको काट दो. इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. ये इंट्रोडक्शन लिखो. फर्स्ट, इटालियन